السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر حسنہ حسین کے ایک بالکل نیو ناول کے ساتھ جس کا نام ہے ابتحال۔ اور ناول بس کچھ دن پہلے ہی اس کی فرسٹ ایپیسوڈ آئی ہے اور اس کی ریکویسٹ مجھ سے کی ہے علی نے۔ ناول چونکہ ڈائجسٹ میں آیا ہے اور آن لائن نہیں آیا تو اس سے ڈھونڈنے میں مجھے بہت مشکل ہوئی۔ میں نے ریکویسٹ کئی جگہ کی اور پھر جا کے مجھے اس کی PDF ملی ہے اور میں تو بہت خوش ہوں حسنہ حسین کے ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، کیونکہ میں نے اپنے چینل پر حسنہ حسین کا ناول نہیں پڑھا، یہ پہلا ناول ہے اور ہم سبھی کا فیوریٹ کپل ہے جنت زبیر اور فارس، تو مجھے لگتا ہے کہ اس ناول میں بھی ہمیں کوئی آئیکونک کپل مل ہی جائے۔ ناول کو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں، ہم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک شیئر اور کمنٹس کریں۔ تمہیں خبر ہے تمہاری ہجرت سے کیا ہوا ہے؟ ہمارے گھر کی وہ خواب گاہیں جو سرخ پھولوں کی بھینی خوشبو کی اوٹ لے کر ہماری مرضی کے خواب دن رات بن رہی تھی، وہ بانجھ پن کے جسیم سانپوں سے اپنی کوکھوں کو بھر چکی ہیں، وہ مر چکی ہیں۔ تمہیں خبر ہے ہمارے بستر لحاف تکے، وہ جن کی نازک گداز جلدوں کے نرم ریشے تمہارے پوروں کا لمس پا کر جمع ہوئے تھے، وہ کھڑکیوں کی نفیس جالی سے چمن کی آتی اداس مٹی سے اٹ چکی ہے، وہ پھٹ چکے ہیں۔ تمہیں خبر ہے ہمارے بیڈ پر وہ دائیں جانب سفید ململ کی ایک چادر میں خواب لپٹا ہوا دھرا تھا، وہ خواب جس کے حسین آنکھوں میں زندگی تھی، جو 7 رنگوں کی روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ خواب بیڈ پر پڑے ہوئے ایک نہیں پتلے کی زرد آنکھوں سے رستے چشموں کے کھارے پانی میں بہہ گیا ہے، تمام کمرے کا فرش رنگین ہو گیا ہے۔ تمہیں خبر ہے کہیں سے دیمک کا ایک کیڑا ابھی اپنے کمرے میں آ گیا تھا، مصوری کے ہنر سے واقف عجیب فنکار جانور ہے، جسیم بادل تنے ہوئے ہیں، ہوا بھی بارش کی نرم بوندیں اٹھا کے اٹھلائی پھر رہی ہے۔ وہیں درختوں کے پاس ایک شخص ٹھٹھرتے ہاتھوں میں چھتری لے کر کسی کے آنے کا منتظر ہے۔ تمہیں خبر ہے بہار موسم میں آسماں پر جو بکھرے رنگوں کی روشنی سے شمالی دیوار کی جبیں پر عجیب دلکش سی پینٹنگ بھی بنا گیا ہے، وہ پینٹنگ ہے یا زندگی کا وہ ذائچہ ہے کہ جس میں ایک رواں سڑک اور اس کے دونوں طرف درختوں کی لمبی لائن بھی چل رہی ہے۔ وادی ہرنائی پر سناٹے چھائے ہوئے تھے، جنگل تاریک اور ویران ہو چکا تھا، فارم ہاؤس، گیسٹ ہاؤس اور عالیشان بنگلوں کی روشنیاں مدھم پڑ چکی تھیں، تاہم ایک گھر ایسا تھا جس کی رنگین بتیوں میں ابھی بھی ہلچل تھی اور وہی ہلچل اس کے دل میں بھی ہونے لگی تھی۔ کمرہ ویران تھا، رائٹنگ ٹیبل پر وہ نہیں تھی، عجلت میں قدم اٹھاتے وہ باہر آئی تھی۔ راہداری کے دروازے پر رک کر اس نے سامنے دیکھا، فضا میں عود کی خوشبو بسی ہوئی تھی، گھر کا مرکزی ہال بقا نور بنا ہوا تھا، پھولدار لڑیاں تھیں، بیلیں اور چھڑیاں تھیں، سنہری بتیوں میں جگنو کا گمان ہوتا تھا۔ کہیں خالی گلاس رکھے تھے، کہیں پلیٹ میں آدھ کھائی ہوئی مٹھائیوں کے ٹکڑے تھے، سفید ٹائلز پر گلاب کی پنکھڑیاں تھیں، زندگی کے آثار یہاں وہاں بکھرے تھے، پھر بھی ایک خاموشی تھی اور خوفناک سناٹا تھا۔ اس سناٹے میں اس کا دل دھڑکا تھا، جلتے بجھتے دیوں میں کہیں دھواں سا اٹھ رہا تھا، شاید کہیں آگ جل رہی تھی، وہ آگ اس کے اندر بھی اٹھ رہی تھی، وہ اسے تہ درد عرق آلود کر رہی تھی۔ متلاشی نگاہوں میں ایک کرب سا تھا، شدید غصہ اور غم سا تھا، تاہم لب بھینچے ہوئے تھے جیسے بہت سی چیخوں کو دبائے ہوئے ہوں، جیسے بے بسی کے اس خوف میں اندر کہیں ٹھہرائے ہوئے ہوں۔ متلاشی نگاہیں یہاں وہاں بھٹکنے لگی، وہ قدم اٹھائی گئی، دروازہ کھولتی گئی، اسے ڈھونڈتی گئی، وہ کہیں نہ تھی، نہ اپنے کمرے میں، نہ اس گھر کے کسی کمرے میں۔ اس کے وجود پر کپکپاہٹ طاری ہوئی، لرزتے ہاتھوں سے اس نے آخری کمرے کا دروازہ بجایا۔ آ جاؤ، حکم ملتے ہی وہ پھولے تنفس کے ساتھ اندر آئی تھی۔ مجھے ابتحال نہیں مل رہی، لفظ ایک دم سے ختم ہو گئے، آواز پل بھر میں ساکت ہو گئی۔ عصمت بیگم کے تخت پر ان کے برابر میں ابتحال شاہ زیب بیٹھی تھی، خاموش، بے تاثر سا چہرہ تھا، آنکھوں میں سرد مہری تھی، لبوں پر کفر ٹھہرے ہوئے تھے۔
اس کے ہاتھوں میں گلابی جوڑا تھا اور سنہری کانچ کی چوڑیاں تھیں، میچنگ جیولری اور چمکتے سینڈلز تھے۔ گفٹ کی طرح پیک کیا ہوا سامان کھلا پڑا تھا۔ یہ ہمارے کمرے میں آنے کو کون سا طریقہ ہے؟ عصمت بیگم برہم ہوئی۔ آتش دان کی جلتی ہوئی آگ میں اسے اپنا وجود ایک دم سے جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ فضا میں جو خنکی ٹھہری تھی ختم ہو گئی۔ پیشانی پر قطرے نمودار ہوئے۔ حبس شدید ہونے لگا۔ حالہ اس کے لب ہلے۔ ہم ابھی بات کر رہے ہیں، تم جا سکتی ہو۔ اس نے سنا اور سن کر کھڑی رہی۔ قوت سماعت سے محروم نہ تھی، قوت گویائی سے محروم نظر آئی۔ اس کی آنکھیں ابتحال شاہ زیب پر ٹھہری رہیں۔ کچھ صدمہ تھا، کچھ دکھ، کچھ بے یقینی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اس طرح ان کے بلاوے پر ان کے پاس کیسے جا سکتی ہے؟ میرال؟ عصمت بیگم کی آواز کاٹ دار تھی۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی بھی ابتحال شاہ زیب کو نہیں بلایا تھا، نہ کبھی کوئی بات کی تھی، نہ کوئی تحفہ عنایت کیا تھا، نہ محبت میں کوئی حصہ رکھا تھا، ورنہ وہ پہلے سے ٹوکتی، پہلے سے کوئی حد واضح کرتی، کوئی اصول نافذ ٹھہراتی، مگر اس طرح اچانک اس کا سر نفی میں ہلا۔ اس نے ابتحال کی گود سے وہ گلابی جوڑا ہٹا دیا، چوڑیاں نیچے گر گئی، جیولری کا سیٹ بھی لڑک گیا۔ بازو سے پکڑ کر اس نے جھٹکے سے اسے کھڑا کیا۔ میرال! عصمت بیگم غیظ و غضب میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ابھی اور اسی وقت ہمارے کمرے سے نکل جاؤ۔ ان کا ہر کام مستعدی اور تابعداری سے کرنے والی میرال اسفند نے آنکھوں میں کرب لیے ان کی طرف دیکھا۔ حالہ کے لیے مجھے کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اتنی ہی سختی سے اس نے ابتحال کا بازو دبوچ لیا۔ عصمت بیگم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پہلی بار ان کا حکم نظر انداز ہوا تھا، پہلی بار ان کی بات ٹالی گئی تھی۔ تمہاری یہ جرت! وہ بھڑک اٹھی۔ میرال اسفند، ان کی خدمت گار، جس کی حیثیت اس گھر میں کسی نوکر سے کم نہ تھی، جو ان کے ٹکڑوں پر پلتی اور ان کا ہر حکم مانتی تھی، اس عورت کا ایسا روپ اور ایسا رد عمل انہیں آپے سے باہر کر گیا۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ ایک تھپڑ اسے پڑا۔ یہ تھپڑ اسے 15 سال پہلے بھی پڑا تھا۔ اس وقت وہ بے بس تھی، چپ چاپ سہ گئی۔ آج وہ اتنا بے بس ہوئی کہ بول پڑی، خدا کے لیے صرف مجھ تک رہیں، حالہ تک مت جائیں۔ بہت ضبط سے لب بھینچ کر پست آواز میں بولی۔ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو چکی تھی۔ اس کا صبر ختم ہو رہا تھا۔ جانتی تھی یہ سب کس کے لیے تھا، کس کی وجہ سے تھا۔ فیصلہ ہو چکا ہے، ہم نے ہاں کہہ دی ہے۔ عصمت بیگم نے غیظ و غضب کے عالم میں ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ اب رین کی رخصتی کے بعد ہم اس کا نکاح کریں گے۔ اب کے پتھر ہونے کی باری ابتحال شاہ زیب کی تھی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ 14 سال کی بچی ہے یہ؟ میرال کرب کے عالم میں چیخ پڑی۔ تمہاری بچی ہے یہ؟ آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر وہ بولی۔ تمہارا خون ہے اس کی رگوں میں، تمہاری طرح یہ بھی ہمیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ ابتحال سکتے کی حالت میں گم عصمت بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے پاس بٹھایا تو اس نے سمجھا محبت میں بٹھایا ہوگا۔ بیش قیمت جیولری اور فینسی جوڑا بھی اپنے تلخ رویے کی تلافی کے لیے خریدا ہوگا، مگر اس کی تمام خوش فہمیوں کو ایک دم سے آگ لگ گئی تھی، تمام امیدوں پر پانی پھر گیا تھا۔ میں نے شاہ زیب کی مرضی سے رشتے کی بات کی ہے۔ وہ اپنے اس بیٹے کا حوالہ دے رہی تھی جو ابتحال کی زندگی میں کہیں نہیں تھا۔ آپ کے ہر فیصلے کو میں رد کرتی ہوں۔ کس قدر ہمت کے ساتھ اس نے کہہ دیا۔ عزت سے نکاح کا موقع مل رہا ہے اور تم اسے گنوا رہی ہو۔ زندگی میں عزت نہیں نکاح سے مل جائے گی۔ عصمت بیگم نے غضبناک نگاہوں سے میرال اسفند کو دیکھا، ابتحال کو اپنے پیچھے کیے۔ وہ کوئی اور ہی میرال لگ رہی تھی۔ سمرہ تمہارے متعلق ٹھیک ہی کہتی ہے، 2 روپ ہے تمہارے، معصومیت کا تو صرف ڈھونگ ہی رچاتی ہو۔ میرال چپ رہی۔ عصمت بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ لڑکی تمہاری ہر گناہ کا حساب بنے گی، یہ بھی وہی کرے گی جو تم نے کیا۔ ابتحال کی نگاہیں عصمت بیگم کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ انہیں دیکھ رہی تھی، انہیں سن رہی تھی۔ خوشگمانی کی عمارت زمین بوس ہو چکی تھی۔ تحائف نے جو دل نرم کیا وہ مزید پتھر ہو چکا تھا۔ جیسا تمہارا کردار ہے اسے کون بہائے گا؟ وہ آخری سوال گویا سوال نہیں خنجر تھا جو میرال اسفند کے دل میں اتر گیا۔ کس قدر کرب سے لب بھینچ کر میرال نے صبر کا گھونٹ بھر لیا۔ کہنے کو بہت کچھ تھا
पर कह न पाई। इब्तिहाल का हाथ थामे कमरे से निकल गई। समीर सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ रहा था। उन पर नज़र पड़ते ही रुक गया। इब्तिहाल की निगाहें बेजान सी थीं। वो मीराल असवन के साथ किसी कठपुतली की तरह खींची जा रही थी। बसी किचन का उकबी दरवाज़ा खोलकर उसने बराबर वाले कमरे में इब्तिहाल को अंदर दाखिल किया। जब मैंने तुम्हें मना किया था घर के किसी फर्द के सामने मत आओ, तो तुम क्यों आई? दरवाज़ा बंद करके वो बोली तो लहजा सख्त और आवाज़ भीगी हुई थी। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ हाला, क्यों तुम इस तरह? और हाला बता नहीं सकी। वो उसे तंग करने की गर्ज से नहीं गई थी। उसके जहन में कोई मंसूबा नहीं था, न बदले इंतकाम का कोई जज्बा था। दिल की हकीकत महज दिल तक थी और सदमा आंसू में मदगम रहा। वो चुपचाप मीराल को देखे गई। जाने कितने ताने थे जो मीराल के हवाले से उसे रोज़ाना सुनने पड़ते थे, और जाने कितने बहतान और इल्ज़ाम थे जो अब उसके वजूद का अहाता करने वाले थे। आइंदा वो तुम्हें अपने पास बुलाएं या किसी से मिलवाने की कोशिश करें तो तुम नहीं जाओगी, मीराल ने कह दिया। उसने सुन लिया। जैसा तुम्हारा किरदार है इसे कौन बिहाएगा? असमत बेगम के अल्फाज समात में हथौड़े की तरह लगे। उसने सर उठाकर मीराल को देखा जो आंसू पोंछ थी, लिहाफ ओढ़े सोने के लिए लेट चुकी थी। फिर उसने अपनी हथेलियों को देखा जिन पर कोई नक्श न था। हालांकि आज घर की तमाम लड़कियों ने मेहंदी लगाई थी और कलाइयाँ भर भर चूड़ियाँ पहनी थी, मगर उसकी कलाइयाँ खाली थी और लिबास बिल्कुल सादा सा था। दुर्फिशा ने यह लिबास पिछली सर्दियों में पहना था। इब्तिहाल शाज़ेब इन सर्दियों में पहन रही थी। मीराल को उज़्मा ताई की उतरन मिलती थी तो उसे दुर्फिशा की। उसने उठकर खुद को आईने में देखा। अज़मत बेगम कह रही थी वो मीराल जैसी थी, और उसे लगा वो मीराल जैसी ही है। लिबास, हुलिये, अंदाज और चेहरे के खदोखाल में भी वो मीराल असवन का पड़तू बनती जा रही थी। उसके जहन में बैक वक्त कई सवाल उठे, कई ख्याल जागे, और दम साधे अपना अक्स देखती रही। वो अक्स जो हिस्सों में, टुकड़ों में और कीर्चियों में बटा हुआ था। तारीक कमरे के दरो दीवार पर धरे सन्नाटों का तिलस्म बिजली की कड़क से पाश पाश हुआ था। बारिश की बौछार तूफ़ानी हवाओं का असर लिए कसरे जलाल की इमारत से आ टकराई थी। मैं और सिर्फ तुम। तारीके में हाथ रोशन हुआ। उंगली उसकी तरफ उठी। जिस्म पोशीदा, चेहरा गायब रहा। तुम नहीं तो कुछ नहीं। उसके साकिन वजूद में यकायक जुम्बिश हुई थी। डूबती उभरती सांसों का वज़न उसके सीने पर आ ठहरा था। एहसास की हर हन अब खौफ से जुड़ चुकी थी। मेरा सब तुम पर शुरू, तुम पर ख़त्म। वादी दवारियान से नीचे सब्ज़ाज़ार से होते हुए वो तूफ़ान दरियाए नीलम के साकित पानियों में उतरने लगा था। लहरें भंवर बनाने लगी थी। पानी उछल उछल कर ज़मीन से लपटने लगा था। उसने उठने की कोशिश की तो उठ ना सका। कोहनी के बल ऊपर हुआ तो साइड टेबल का लैंप लुढ़क गया। पसीने से तर वजूद लिए वो किस कदर कोशिश से उठ खड़ा हुआ। आवाज़ समात में और धुन बसीरत में ठहर गई। कहीं पर लड़खड़ाते, कहीं पर पाँव जमाते वो बेडरूम से बाहर आ गया। तवील राहदारी हिलने लगी। चमकदार टाइल्स टूटने लगे। दीवारगीर पेंटिंग्स के सारे रंग फ्रेम से निकलकर उसके अतराफ में फैल गए। हर रंग में एक राज, एक स्याही, एक मंजर पोशीदा था। वो कदम उठाने लगा तो उसे लगा पाँव तले अब ज़मीन नहीं है। वो फ़िज़ा में कहीं मौलिक हो रहा है या बहरे करा में उतरता जा रहा है। अरबाज़, वह मुश्किल आवाज़ देते वो पूरी कुव्वत से आगे बढ़ा। दिमाग का अपना एक जाल था, वो उस जाल में अब उलझने लगा। अरबाज़। दूसरी आवाज़ पर कदमों की चाप उभरी। उसने खड़े खड़े घूमकर चारों तरफ देखा। ऊंची सीलिंग अब नीचे आ रही थी। क्रिस्टल टूट रहे थे। खिड़कियों के उस पार तूफ़ान एक बार फिर शिद्दत से दहाड़ा था। अब वहाँ वो अकेला ना था। उसके आसपास कई चेहरे थे, कई हेवले, कई साए और कई सरगोशियाँ भी। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? वो मिट्टी का एक खाली पुतला था जिसके चेहरे पर खदोखाल न थे, बस बाल थे और खड़खड़ाहट थी, जैसे पुतले के धागों को खींचकर एक हरकत से पैदा की जा रही हो। जगह इतनी वीरान कि मकड़ियों के कई जाले उस पर तने हुए थे। उसका जहन तारीक होने लगा। आंखों में वीरानी उतरने लगी। जगह अनजान सी, दुनिया सुनसान सी, आवाज़ें गैर मानूस और चेहरे बेजान से। पेशानी पर हाथ रखे
उसने तकलीफ़ की शिद्दत से सर झटका, पलकें झपक झपक कर अर्तकाज़ पकड़ा, फिर दीवार का सहारा लिए सर उठाया। धुंधलाहट ख़त्म, आवाज़ें बंद हो गईं। छोटे मालिक? अरबाज़ खान की आवाज़ अकब में गूंजी। दीवार पर हाथ रखे वो उसकी तरफ मुड़ा। तवील आईने में उसका अक्स नुमाया हुआ। उसके पैरों में जूते नहीं थे, ऊपरी वजूद पर शर्ट नहीं था। दर्द छुपा हुआ था, ज़ख्म आया हो रहे थे। कहाँ मरे हुए थे तुम सारे के सारे? आवाज़ फनकार से मुशाबा थी, आंखें लाल अंगारा हो रही थी। उसके और अरबाज़ खान के दरमियान सलाखों की एक तवील दीवार थी। मैं माजरत चाहता हूँ मालिक। अरबाज़ खान सर झुकाए मुअद्दब रहा। उसके पीछे खड़ा नौजवान लड़का अलबत्ता हैरत का शिकार लगता था। कसरे जलाल में वो नया नहीं था, मगर ये चेहरा उसके लिए नया ही था। जलाल ख़ानदान ने न जाने किन वजूहात के तहत उसे ज़मीनी गहराइयों में छुपा कर रखा हुआ था। उसके पुश्त पर जा बजा कई ज़ख्मों के मनमिल निशान थे, गर्दन से कंधों तक और कंधों से नीचे पुश्त तक, और चौड़े सीने पर भी, जैसे किसी नोकीली शय से चीरा गया हो। सुनहरी आँखों में बला की वहशत थी। घने बिखरे बेतरतीब बाल, शेव बढ़ी हुई और जबड़े भींचे हुए, आँखों में हैरानी लिए वो उसे और सलाखों के हद लिए एक छोटे से अपार्टमेंट से मुशाबा उस जगह को देखे जा रहा था जो कसरे जलाल की ज़मीनी गहराइयों में बनाई गई थी। बेडरूम वसी सा, लाउंज और ड्राइंग टेबल जिसके वसत में शाही कुर्सी रखी थी। दीवारों पर खिड़कियों का आभाम था। खिड़कियां हकीकी नहीं थी। प्रोजेक्टर पर बाहर का मौसम अंदर दिखाया जा रहा था। उसके पर्दे भी लटकाए गए थे। बड़े मालिक ने आखिर यहाँ किसे पनाह दे रखी है? लड़का हुनूस गर्दन सीधी रखे सलाखों के उस पार खड़ा हैरत ज़दा सोचे जा रहा था। उसके वहमो गुमान में भी न था। कसरे जलाल एक खुफिया दरवाज़ा, एक पोशीदा राज रखता है। सलाखों की साइड फिंगरप्रिंट से एक जानिब सरक गई थी। अरबाज़ खान अंदर आ चुका था। सलाखें फिर से बराबर हो गई। क्या आप ठीक हैं? अरबाज़ खान ने उसका बाजू थामा, उससे सहारा देना चाहा, मगर उसने उसका हाथ झटक दिया। पूरी कुव्वत से वो 2 कदम आगे बढ़ा, डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींची, मेज़ पर हाथ रखा, फिर बैठते ही सर उठाया। सामने खिड़की के भाम पर बारिश की बौछार थी। तूफ़ान में अब शिद्दत आ चुकी थी। वो मंजर हकीकी था जो पथरीली दीवारों पर दिखाया जा रहा था। कसरे जलाल की दरो दीवार के उस पार धुंध में गुम होते दरख्तों की शाखें तेज़ हवाओं से टूट रही थी। पथरीली रविश पर शोर था। फव्वारे पानी में भरे जा रहे थे और अंदर भाप उड़ाता मग उसे पेश कर दिया गया था। जूते उसके पैरों में रख दिए गए थे। अरबाज एक बार फिर मुखातिब हुआ था। अतराफ से यकसर बेनियाज वो अपने दाहिने हाथ को चेहरे तक ले आया। उसका हाथ भारी था। उसकी आंखों की धुन एक बार फिर वापस आ रही थी। क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते? गुड़िया की गर्दन अलग थी। गुड़िया का घर भी टूटा हुआ था। खिलौने बिखरे पड़े थे। उसने अपना सर मेज़ पर रख दिया। पुतले फिर से मुतहरिक हुए थे। खड़खड़ाहट की आवाज़ गोया पास से गूंज रही थी। उसने बारिश की बौछार में कदमों की चाप सुनी। सफ़ेद फ्रॉक के दामन पर आग का निशान देखा। सतरंगे मफलर पर अचानक खून की धार गिरी। कुछ देर तक वो गहरी सांसें लेता रहा, फिर आंखें मीच कर अपना सर पकड़ लिया। वो आज फिर आई है। यह आपका इबाम है। उसने सर उठाकर खून से सुर्ख पड़ती आंखों से अरबाज को देखा। यूं खड़े खड़े तुम्हारा गला दबा दूं तो क्या वो भी इबाम होगा? अरबाज खान चुप हो गया। मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूँ। नहीं, तुम नहीं समझ सकते। कुर्सी धकेल कर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अरबाज की आंखों में आंखें गाड़ कर देखा। अपने मालिक से कहो मेरा सामना करे। अकब में खड़े नौजवान लड़के की रगों पैर में सर्द लहर दौड़ी। उसकी आंखों का तासुर, लहजे की सख्ती और भारी आवाज़। मैं ज़रूर कहूँगा। अरबाज की आवाज़ सन्नाटे में गूंजी। दर्द की एक लहर उठी। उसने बेइख्तियार मेज़ का सहारा पकड़ा, दूसरा हाथ पेशानी पर रखा। कदमों की चाप एक बार फिर उभर रही थी। वो कुर्सी पर बैठ गया। उसकी धड़कन तेज़ हो चुकी थी और बाहर कसरे जलाल के अहाते के उस पार बैरूनी गेट पर अपने कैबिन में विराजमान चौकीदार को यकायक एहसास हुआ जैसे उसके कैबिन के बाहर कोई खड़ा है। उसने स्लाइड खींचकर छोटी सी खिड़की से बाहर झांका, मगर उसे कुछ दिखाई न दिया। स्लाइड बंद करके वो हीटर के पास जा बैठा। पॉकी टॉकी पर उसने बटलर अरबाज खान को सब ठीक है का सिग्नल भी दे दिया। अतराफ से अक्सर बेनियाज होकर अब वो चाय पी रहा था।
اس کے کیبن سے باہر بیرونی گیٹ کے عین سامنے نسوانی ہیولا کھڑا تھا، سترنگا مفلر ایک ہاتھ میں لیے، دوسرے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا تھامے نگاہیں دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ وجود بھیگا ہوا تھا، کیمرہ عین اوپر تھا، مگر کسی بھی اسکرین پر وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ شہر کی تاریخی عمارتوں کے پیچھے لندن کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ آکسفورڈ روڈ پر خوب چہل پہل اور رونق تھی۔ رنگین بتیوں کا اپنا ایک حسن تھا جو ہر گلی، ہر دکان اور ہر عمارت کی کھڑکیوں سے نظر آ رہا تھا۔ ہنستے مسکراتے لوگوں کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز تھے۔ خرید و فروخت کے ساتھ ساتھ آرٹ گیلریز کو بھی وزٹ کیا جا رہا تھا۔ ویڈیو بنائی جا رہی تھی، تصویریں کھنچوائی جا رہی تھی۔ سیاہ 3 پیس میں ملبوس سیاہ رنگ کا لمبا کوٹ زیب تن کیے، اسی کوٹ کی جیبوں میں اپنے ہاتھ ڈالے وہ سیلفریجیز کی عمارت سے باہر نکلا تھا۔ فریڈی نے اسے دور سے دیکھتے اپنا ہاتھ ہلایا۔ وہ فوراً سے بیشتر اس تک پہنچ چکا تھا اور کچھ ہی دیر میں وہ دونوں شیشے اور اسٹیل سے بنی اس جدید عمارت میں داخل ہو چکے تھے، جو عمارت کی تاریکی میں نیون لائٹس کی لکیروں میں گھری ہوئی تھی۔ عمارت کی بلندیوں پر بڑا بڑا وون لکھا تھا۔ داخلہ ایک وسیع ہال پر مشتمل تھا، جس کے اطراف میں زجاجی شیشے سے بنی دیواریں تھیں۔ انہی دیواروں سے باہر کا منظر دکھتا تھا۔ اندر ہوٹل کا عملہ خاموشی و احترام کے ساتھ مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا۔ سوٹڈ بوٹڈ 2 نوجوان اپنے ایئر پیس سے کچھ سنتے تیزی سے اس کے پیچھے آئے، مگر فریڈی نے انہیں ہاتھ سے روک دیا۔ ایلیویٹر کے دروازے کھل چکے تھے۔ 12ویں منزل تک پہنچنے میں انہیں چند ہی لمحے لگے۔ سر، آپ کے لیے کسی نے تحفہ بھیجا ہے۔ راہداری سے گزر کر اپنے سوئٹ کی طرف جاتے اس کی رفتار سست پڑی۔ میں نے آپ کے کمرے میں رکھوا دیا ہے۔ فریڈی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ لفٹ کے دروازے برابر ہو گئے تھے۔ پاسورڈ سے لاک کوڈ کھولتے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ سوئٹ کی نیم تاریکی میں پر اسراریت کی روشنی ٹھہری تھی، درکار اور مدھم سی، اعصاب پر بھاری اور بوجھل پڑی ہوئی۔ خوش آمدید مالک، کمپیوٹرائزڈ آواز چہار سو گونجی۔ اس کی نگاہیں بھٹکتی ہوئی سینٹرل ٹیبل پر جا ٹھہری، جس پر سیاہ ووڈن فریم باکس رکھا تھا۔ اپنی جیبوں سے ہاتھ نکالے وہ دھیمی چال چلتا میز کے پاس آ رکا۔ چہرے کے تاثرات میں سنجیدگی لیے اس نے اپنی سرمئی آنکھوں میں کئی سوال ٹھہرا لیے۔ باکس کے اطراف میں ہک لگے ہوئے تھے۔ اس نے ہک ہٹا کر کور اٹھایا۔ باکس کے اندر برطانیہ کے ملکہ ایلنور کی تصویراتی پورٹریٹ رکھا تھا، جسے فریڈرک سینڈیز نے 1858 میں بنایا تھا۔ ایک ہاتھ میں چاقو، دوسرے ہاتھ میں پیالہ لیے، سر پر تاج پہنے، ملکہ ایلنور اپنے چہرے کے تاثرات میں پوشیدہ حکایتوں کا اثر لیے مشرقی سمت دیکھ رہی تھی۔ پورٹریٹ کے بغور دیکھتے اپنے آپ میں وہ ایک پل کے لیے پتھر ہوا تھا۔ ایک اور تحفہ، یعنی ایک اور تمبی۔ اس کی بھویں سکڑ گئیں، چہرے کے تاثرات میں سختی در آئی۔ اس نے وہ پورٹریٹ پلٹ کر اگبی سائٹ پر گلڈفورڈ کا نام لکھنا تھا۔ اس کی بھویں سکڑ گئیں۔ یہ لندن کا وہ شہر تھا جسے گزشتہ ہفتے اس نے وزٹ کیا تھا۔ اپنے اعصاب کو قابو رکھتے وہ سنگل صوفے پر ٹانگ جمائے اب بیٹھ گیا تھا۔ صوفے کے ساتھ پشت ٹکائے، ہاتھوں پر اپنے دونوں بازو رکھے، وہ انتہائی سنجیدگی سے اب سامنے دیکھنے لگا تھا۔ ملکہ ایلنور کا ساکت پورٹریٹ ہنوز پڑا رہا، چاقو کی چمک ویسی ہی رہی، پیالہ مشروب سے بھرا رہا۔ تمبی وہی جو مل چکی تھی، پیغام وہی جو پہنچا دیا گیا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں وحشت کا تاثر گہرا ہوا۔ رات کی تاریکی پہلے اس کی آنکھوں میں اتری، پھر اس کے دل میں آ کر ٹھہر گئی تھی۔ صباحت بیگم کرسی پر براجمان تھی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی اور کھڑکیوں کے تمام پردے سمٹے ہوئے تھے۔ جو روشنی اندر آ رہی تھی وہ ان کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ ان کے عقب میں دروازہ کھلا ہوا تھا۔ راہداری میں ننھی بچیوں کے بھاگنے دوڑنے اور معصوم کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انہوں نے گردن موڑ کر سامنے لاؤنج کی طرف دیکھا۔ نازیہ وہیں بیٹھی تھی، شجاع سے انتہائی سنجیدگی سے بات کرتی ہوئی۔ ڈائری ہاتھ میں تھی، وہ کچھ لکھ رہی تھی۔ اس کے میکے میں تایا زاد کی شادی تھی، سو تیاریاں جاری تھیں۔ میز پر اور صوفے پر بھی کچھ زرق برق لباس رکھے تھے، کچھ فراک ہینگر میں لگے تھے جنہیں وہ اب شجاع کو دکھا رہی تھی۔ لاؤنج میں اتنے رنگ تھے کہ سفید اور سیاہ کا تاثر ان کے کمرے سے ان کے وجود کے اندر تک آ گیا۔ ماما، مجھے ریڈ کلر پسند ہے، میں ریڈ فراک لوں گی۔
7 साला ज़ैनब भागती हुई माँ के पास आई थी। नाज़िया का लाया हुआ नीला सूट उसने वहीं खड़े खड़े रद्द कर दिया था। अम्मी, मुझे सुर्ख रंग पसंद है। खोई भूली बिसरी याद जहन के किसी गोशे से निकलकर आंखों में आ ठहरी। ख्याल से हकीकत में ढलता एक वजूद उनके सामने आ गया। पल भर में मंजर बदला और अलमारी खुल गई। एक ही रंग के सादा और फीके कपड़ों का ढेर दिखाई देने लगा। मेरे लिए चूड़ियाँ? लफ्ज़ वही ठहर गए फिज़ा में। वो जुमला कभी मुकम्मल नहीं हुआ था, हो ही नहीं सका। उन्होंने कुछ बेकरारी से पहलू बदला, आंखें मसली। मैं सोच रही हूँ बच्चियों को कल पार्क ले जाऊँ, ज़रा घूम फिर लेंगे, आउटिंग भी हो जाएगी। नाज़िया शुजा से अब कुछ और कह रही थी। इस बात में सर हिलाते उसने इजाज़त दी। मंजर फिर से बदल गया। किताबों की ढेर में बैठी हुई वो लड़की सर उठाए उन्हें देखने लगी, कुछ हैरत से, बेयकीनी से। सबाहत बेगम के घर में ऐसे रंग, ऐसी बातें, ऐसे कह कहे और खुशियाँ। तुम चली क्यों नहीं जाती? उनके लब हिले। कहाँ जाऊँ? उसने पूछा। वो दम साधे उसे देखे गई। सर उठाए वो धान पान सी 14 साला लड़की उन पर नजरें जमाए किताब पर कलम घसीट रही थी। अम्मी, मैं कहाँ जाऊँ? वो उठ खड़ी हुई। शुजा ने सर उठाते उन्हें देखा। तस्बीह उनके हाथ में थी, दुपट्टा सर से ढलक गया था। उन्हें लगा कोई दरवाज़ा धड़धड़ाए जा रहा है और गिड़गिड़ाए जा रहा है। वो लाउंज से दरवाजे खोले, बाहर लॉन में आ गई। उन्होंने बाहर वाला गेट खोल दिया। शुजा उनके पीछे से बाहर आ गया था। क्या हुआ? उन्होंने चौंक कर उसे देखा, फिर बाहर निगाह दौड़ाई, जैसे वो तसल्ली करना चाहती हूँ कि कोई है तो नहीं। शुजा ने उनका हाथ थामा और उन्हें अंदर ले आया। नाज़िया सब छोड़ छाड़ कर उनके पास आ गई। उनकी निगाह मेज़ पर धरी मेहंदी, चूड़ियों के सेट और खूबसूरत सैंडल्स पर ठहर गई, जो नाज़िया कल रात शॉपिंग करके लाई थी। दादो, आज आपा आएंगी तो हम उससे मेहंदी लगवाएंगे, अच्छी लगेगी ना? वो सोफे पर बैठ चुकी थी और बच्चियां उनके आगे पीछे फिरती शोर मचा रही थी। उनकी आवाज़ में दबा दबा सा जोश था और आंखों में खुशियों के रंग। हमारी दादो अच्छी हैं, बिल्कुल नहीं डांटती। जहरा की दादो उसकी पिटाई करती हैं, नन्ही शिफा बाप को बता रही थी। सबाहत बेगम उठकर अपने कमरे में चली गई। शुजा ने बहुत खामोशी के साथ उन्हें दूर तक जाते देखा था। सारी रात बरसने वाली बारिश अली उस सुबह थम चुकी थी। वादी हिरनाई का आसमान साफ हो चुका था, मगर धुंध ठहरी रही। जमान हाउस में हुनूस खामोशियों का राज था। सिर्फ मुलाजिम ही बेदार थे और उन्हीं मुलाजिमों में एक वो भी थी जो मामूल की तरह रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल हो चुकी थी। घर के हर फर्द का नाश्ता अलग और दूसरे से मुख्तलिफ बनता था। किचन में आज खानसामा ना था। वो अकेली लगी रही, नाश्ता बना बना कर मेज़ पर लगाती रही। असमत बेगम सदर कुर्सी पर विराजमान हुक्म पर हुक्म सादिर करती रहीं। चाहे उन्होंने जाने किस कदुवत की वजह से दोबारा बनवाई। कभी टोस्ट जले हुए लगे, कभी हाफ फ्राई का नमक तेज़ लगा। कई बार उसे डांट भी पड़ी और कई बार उसने ताने भी सुने। दरफिशा अपने भाइयों के साथ स्कूल जाने लगी तो उसे एकदम से इब्तिहाल का ख्याल आया। किचन में उसका टिफ़िन बॉक्स पहले से तैयार रखा था। वो उसे उठाए तेज़ी से बाहर निकली। हाला, वो उसके करीब पहुंची तो इब्तिहाल ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। ये तुम्हारा टिफ़िन? उसकी आंखों में बहुत से शिकवे धरे थे, मगर उसने चुपचाप टिफ़िन ले लिया। अपना ख्याल रखना। उसने नरमी से इब्तिहाल की गाल पर हाथ रखना चाहा, जिसे इब्तिहाल ने इंतहाई नफरत से झटक दिया। मेरे साथ ये नाटक मत किया करें, इंतहाई सर्द लहजे में कहकर वो बाहर निकल गई और मीराल असफन वहाँ खड़ी रह गई। ज़मान हाउस से निकलते ही वो सब्ज़ किताब पर पाँव धरती दाएं जाने मुड़ गई थी। उसके अतराफ में दूर दूर तक धुंध फैली हुई थी। सब्ज़ा बिखरा हुआ था, कोहर बरस रहा था। सड़क दाएं तरफ मुड़ी तो शॉर्टकट रास्ता अपनाते वो पाइन, चनार और सनूबर के दरख्त से गुजरती एक पंगडंडी को पकड़कर नीचे उतरने लगी। ज़रा सा सफ़र तय किया तो कहीं से लैला और कहीं से किश्वर साथ आ मिली। फिर जूनियर क्लासेस की कुछ बच्चियाँ भी उसी रास्ते को पकड़ती थीं और एक ग्रुप सा बनकर तकरीबन आधे घंटे का वो सफ़र तय करता था, जो उन्हें गुल फाउंडेशन वेलफेयर हाई स्कूल तक पहुंचा देता था। ये बेटाबाद के मारूफ सियासतदान और बिजनेसमैन का रफ़ाही स्कूल था, जो जदीद सहूलियात और काबिल इस्तादजा की ज़ेर निगरानी चलता था। उसे 2 बरस पहले ही खोला गया था,
हिरनाई के आसपास के तमाम गांव के बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते थे। गो के सफ़र लंबा था और उतार चढ़ाव लिए रास्ता भी मुश्किल, जंगल भी गहरा था, मगर तालीम की लगन, कुछ बनने की धुन और जहनी काबिलियत हर रुकावट को पार कर लेती थी। ग्रुप में वो सबसे आगे होकर फिर सबसे पीछे चलती थी। पैरों में आने वाली किसी कंकर, पत्थर, शाख को ठोकर मारती। उसका सर तब तक झुका रहता जब तक रास्ता बदलने पर नहर ना आ जाती। वो तमाम बच्चे कुछ देर तक सांस रोककर उस नहर को यूं देखते जैसे वो उसकी तंद और तेज़ लहरों में किसी को तलाश कर रहे हों, मगर जिसे वो ढूंढ रहे थे वो दिसंबर के सर्द तरीन दिनों में ठुठरते जमाते पानियों में नहीं हो सकता था। वो खासी मतलाशी बसियार के बाद उन्हें नहर के उस पार दरख्त की किसी शाख के साथ उल्टा लटका हुआ नजर आ गया था। राकान, मुन्ना ने लबों के गिर्द हाला बनाकर उसे जोर से पुकारा। अपने कानों पर हाथ रखे वो शाख को टांगों में फंसाए झूलता रहा। उसका बैग नीचे पड़ा था और मुफलर के सिरे सर के बराबर से नीचे लटक रहे थे। इब्तिहाल ने गहरी सांस भरकर वो मंजर देखा। यह चमगादड़ क्यों बना हुआ है? रोज़ ही बनता है। मछली कब बनेगा? जब गर्मियाँ आएंगी तब। दबी दबी सी खिलखिलाहटें। इब्तिहाल ने कोट की जेबों में हाथ फंसाए और इन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई। राकान, क्या तुम हमारे साथ चलोगे या हम जाएं? छोटी बच्चियां हर रोज़ उसके साथ रेस लगाती थी। वो नहर किनारे उस तरफ भागता था और ये इस तरफ, मगर आज जाने क्या बात थी, वह अपने मराकबे से बाहर नहीं आ रहा था। राकान, नन्ही अफशी जोर से चीखी। रेडी, स्टेडी, गो। उसके मुंह से भाप निकली, मुंतज़िर निगाहें सांस रोके हुए कि राकान आज क्या करता है। और फिर उन्होंने उसे शाख को पकड़कर कलाबाजी खाते और फिर पंजों के बल गिरते देखा। उसने झट से बैग पकड़ा, सर उठाया और फिर हाथ हिलाया। भागो! लैला ने दोनों हाथ खड़े किए और दौड़ शुरू हो गई। रास्ता सीधा और साफ था, बहती हुई नहर के साथ वो बच्चे भागे चले जा रहे थे और बैग की स्ट्रैप्स पर गिरफ्त जमाए खड़ी रही। ये दौड़ उसकी नहीं थी, ना ही ये रास्ता उसका था। उसने दाएं बाएं देखा, गहरी सांस भरी, फिर कदम उठाने लगी। दूर, बहुत दूर, नहर को पुल के जरिया फलांगता राखान आज फिर जीत चुका था। सरजमीन इटली पर रोमानवी शहर वेनिस की सुबह ताजगी के साथ नमूदार हो चुकी थी। संगमरमर की कदीम मगर पुर रौनक गलियों में परिंदों की चहचहाहट गूंजती थी। साहिल समंदर के पास आलीशान इमारत की 12वीं मंजिल थी। उस मंजिल की दीवार गिर खिड़कियों के सामने अपनी कलाई मोड़कर वक्त देखते शाहजेब जमान ने चाय का घूंट लिया था। मोहब्बत से उसके पुष्प पर हाथ रखती अनुषा बराबर में आकर खड़ी हुई थी। मग हाथ में था, सुनहरी डाई बाल खुले हुए थे। सफ़ेद सिल्क के गाउन खूब जच रहा था। शाहजेब के लबों पर जानदार मुस्कुराहट उभर आई। अनुषा को उसी पल वो मुस्कुराते हुए अपने पहलू में खड़ा इंतहाई खूबसूरत लगा। चाय अच्छी बनी है। तुम्हारे लिए जो कुछ बनाऊं अच्छा ही बनता है, वो मुस्कुराया। माँ का फ़ोन आया था, पाकिस्तान आने का कह रही हैं। अनुषा की मुस्कुराहट यकलख्त सिमटी थी। इस तरह अचानक? खैरियत है? जाने क्यों उस पल उसे सांस लेने में दिक्कत हुई। पाकिस्तान का जिक्र उसे एक खौफ में मुब्तला करता था। उस खौफ की एक हियत थी, चेहरा था, पहचान भी थी। अमरीन की शादी है, अरसलान का निकाह है और तुम्हारे भांजे का अकीका भी तो है। उसके तासरात में कोई पोशीदा गम न था, न आंखों में किसी की याद की झलक थी। सब चाह रहे हैं कि इस बार हम हर फैमिली फंक्शन में शिरकत करें। अनुषा ने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला, सर उठाए, फिर शाहजेब को देखने लगी। तैयारी करो, अगले माह की टिकट्स कंफर्म करवा ली हैं। उसका लहजा खुशगवार था। फिर वो कॉल रिसीव करता बाहर चला गया। अनुषा रेलिंग पर हाथ रखे बाहर देखने लगी। उसके अकब में लाउंज था। रिमोट हाथ में लिए 13 साला यमीनी वहीं बैठी थी। छोटी आरजू वहीं अपने खिलौने के साथ घूम फिर रही थी। उसकी ज़िंदगी मुकम्मल थी। शौहर की बेहतरीन जॉब थी, अच्छा घर था, खूबसूरत बेटियां थी, महबूब शौहर था, सब ठीक था, सब अच्छा था। न किसी शय की कमी थी, न किसी महरूमी का शाइबा था यहाँ, न किसी दर्द का एहसास, न किसी खता की शबाहत थी। कहने को वो 14 साल बीत चुके थे, पर सोचो तो कल की बात लगती थी। अनुषा को वो 6 माह नहीं भूलते थे। वो कर्ब भरी शामें
और अजियत भरे दिन जहन से ना निकलते थे। सिर्फ ये तसव्वुर कि शाहज़ेब उसका नहीं, उसकी जान निकाल चुका था। सिर्फ ये अदराक कि उसकी पसंद नहीं, उसकी ज़िंदगी मिटा चुका था। शाहज़ेब उसे ना मिलता तो वो मर जाती। मगर किस्मत के पत्तों पर ज़िंदगी लिखी थी, मोहब्बत भी लिखी थी और शादी भी। वो पत्ते एक एक करके उसकी झोली में गिरते गए। सब यूं बदला जैसे कभी बिगड़ा ना हो, जैसे वो 6 माह उनके माबेन कभी आए ना हो। सब भुलाकर उसने एक नई शुरुआत कर डाली। सब उसे मिल गया, सब उसका हो गया। जिंदगी अब मुकम्मल थी, पर जाने क्यों दिल में खौफ सा था, कुछ छिन जाने का खौफ। और वो खौफ एक पल के लिए भी उसके दिल, जहन और ख्याल से आज़ाद नहीं होता था। ऑफिस से वापसी पर वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो तमाम बत्तियां रोशन थी। ड्रेसिंग टेबल के तवील कामत आईने के सामने अपने सियाह लिबादे का दामन फैलाए वो मस्कारा लगा रही थी। शाजिल की आमद का उसने कोई ख़ास नोटिस न लिया, ना निगाह उठाई, न सलाम का जवाब दिया। अपने भरे भरे होंठों की कटाव तक लगी हुई सुर्ख लिपस्टिक पर उसने एक और शेड का इजाफा किया ताकि वो ज़्यादा डार्क लगे। कहाँ जा रही हो? फ्रॉक का लबादा समेट कर वो एक अदा से उठी। उसी अदा से मुड़ते हुए उसने जोड़े में मुकीर बालों को नफासत से छुआ, फिर गले में चमकते सुनहरी नेकलेस पर उंगली रखी। ज़ारा की इंगेजमेंट पर आंखों में यकीनी लिए शाजिल उसे देख कर रह गया। वक्त देखा है, मौसम देखा है? तुम देखते हो, वक्त भी और मौसम भी। शाजिल के लब भींच गए। तुम आज कहीं नहीं जाओगी। टाई की नॉट ढीली करते उसने फैसला सुना दिया। बेड पर बैठते अपनी सुर्ख रिस्ट वॉच उतारी। मैंने जो कमिटमेंट ज़ारा के साथ कर रखी है उससे नहीं फिर सकती, और जो कमिटमेंट मेरे साथ कर चुकी हो उसका क्या? अब के सर उठाकर उसने लहजे में सख्ती पुरोकर पूछा। ये तो तुम्हारी जिद है, वरना मैं तो तुम्हें अपना हर फैसला सुना चुकी हूँ। दिलरुबा ने एक बार फिर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया था। उसका फैसला अटल था। क्या ये ज़रूरी है कि हर रात इसी तरह हमारे दरमियान बदमज़गी हो? ये बदमज़गी तुम चाहते हो। मुस्तकिल तुम ही मेरे साथ उलझते हो, मेरे मामलात में बोलते हो। अब वो बेड की पायतीनी के साथ लगे सोफे पर सज गई, झुककर अपने गोरे पैरों को सियाह पेंसिल हील में मुकीद करने लगी। उसने आंखों पर आज कोई लेंस न लगाए थे, तो उनकी स्याही में उसका वजूद अंधेरा हो रहा था। ये सब कब तक चलेगा दिलरुबा? वो बुरी तरह से थक चुका था। हमारे दरमियान क्या कुछ चल भी रहा है? वो खोखली सी हंसी हंसी। मेरा अगर नहीं तो अमल का ही ख्याल कर लो। वो बेबसी से गोया हुआ। प्यार, मोहब्बत, इखलाक हर तरीका अपना चुका था वो, मगर दिलरुबा का रवैया एक सा ही था। अमल तुम्हारी ख्वाहिश है, उसे तुम ही देखो। जुमला ज़ू मायने था, एक तरह का हमला भी। औलाद उसे कभी नहीं चाहिए थी, कभी नहीं, कम अज़ कम शाज़िल कबीर से नहीं। वो उस घर में उसकी ज़िंदगी से निकलने के लिए ही आई थी। गुज़िश्ता 4 सालों से उसकी ये कोशिश बार बार नाकाम हो रही थी। शाज़िल कबीर बार बार उसके इशारों को अनदेखा कर रहा था, उसके झगड़े और फसाद को अनसुना कर रहा था। इस घर में वो कई बार दुर्दाना के साथ बदतमीज़ी कर चुकी थी, कई बार हादी और अरबिया के साथ उलझ चुकी थी। मुलाजिम उसके मिजाज से आजिज़ थे, पड़ोसी उसकी हरकत से तंग। शाज़िल की ज़िंदगी जितनी वो मुश्किल बना सकती थी बना चुकी थी, मगर फिर भी उसके रवैये की तलखी, आंखों की सख्ती और धुतकार शाज़िल कबीर को ताहासिल किसी इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर न कर सकी। शाज़िल कबीर को दिलरुबा से मोहब्बत थी, मोहब्बत भी क्या, इश्क था उससे। उसके तसव्वुर के बिना ज़िंदगी अधूरी, उसकी ज़ात के बिना ज़िंदगी नामुकम्मल थी। वो उसे खुद से अलग नहीं कर सकता था। दिलरुबा ने क्लच अपने नफीस हाथों में दबाया और उठ खड़ी हुई। मेरा इंतज़ार मत करना, मैं देर से आऊँगी। कमरे से निकलते वक्त उसने एक बार फिर मुड़कर शाज़िल को ना देखा। उसे उसके चेहरे से नफ़रत थी, वजूद से नफ़रत थी, उस मोहब्बत के एहसास से भी जो वो उससे करता था। ये मोहब्बत की ज़ंजीर ही थी जिसने ताहाल उसे इस रिश्ते में जकड़ कर रखा हुआ था, वरना वो कब का आज़ाद हो चुकी होती। उसकी हर जहन बस उस एक जज्बे के आगे नाकाम हुई थी। नफ़रत का इज़हार उसके लिए कुछ ना था, बदतमीज़ी का वो कोई नोटिस नहीं लेता था। उसे इजाज़त थी, वो कुछ भी कर सकती थी, मगर हर शय की एक हद थी। वो हद उस रिश्ते की भी थी।
जिस की पाबंद वो नहीं रहना चाहती थी। सीढ़ियाँ उतरते उसने सोचा, कल से वो अपने लिबास पर फोकस करेगी। वो शॉर्ट्स पहनेगी, स्लीवलेस भी। शाज़िल कबीर को वह ऐसे इश्तियाल दिला सकती थी। कभी ना कभी, किसी न किसी दिन तो उसके मुंह से वो लफ्ज़ निकलेगा जिसे सुनने की ख्वाहिश दिल में लिए वो अपने घर से रुखसत होकर यहाँ आई थी। निचली मंजिल रोशन थी। मुलाजिम मुतहरिक थे। दुर्दाना किसी मुलाजमा को डांट रही थी। आवाज़ यहाँ तक आ रही थी और उस आवाज़ में एक आवाज़ अमल की भी थी। वो रो रही थी और इतना रो रही थी कि दिल रुबा के कान फटने लगे, सर दुखने लगा। उसे वो अजियत याद आई जो उसने अमल की पैदाइश पर झेली थी। वो ज़ख़म याद आए जो अपने वजूद पर बढ़ते थे। मैडम साहिबा, वो अमल। मुलाजमा उस पर नज़र पड़ते ही भागती चली आई थी। भाड़ में जाए अमल। वो उस पर फट पड़ी। तुम लोगों को मैंने यहाँ किस लिए रखा हुआ है? छोटी सी बच्ची नहीं संभाली जा रही? उसका खूबसूरत चेहरा सुर्ख हो चुका था। मुलाजिम सहम कर सर झुका गई। दुर्दाना ने ताज्जुब भरी निगाह उस पर डाली। जुबान संभाल कर दिलरुबा, बेटी है तुम्हारी, भला कोई अपनी औलाद के लिए भी ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करता है? हाँ तो मेरी औलाद है, मेरी मर्जी, जो भी बोलूँ। आप होती कौन है मेरे मामलात में बोलने वाली? दुर्दाना के लब बाहम पेवस्त रहे। उनके आसाब मुतहम्मिल। उनके अंदाज में कोई सख्ती ना आई। ड्राई फ्रूट की प्लेट से काजू उठाते वो हसीनुमा मुस्कुराहट को हल्का सा दिखाकर दबा गई। दुर्दाना का ये अमल हमेशा उसे ज्वार भाटे में खड़ा करता। वो ऐसे ही उसकी किसी न किसी बात पर मायने खेज मुस्कुराहट दिखाकर चुप रहती। उनकी खामोशी उसके आसाब पर भारी पड़ जाती। वो उन्हें मुश्ताल देखना चाहती थी। ख्वाहिश रहती उनका भी चेहरा सुर्ख हो, आवाज़ बुलंद हो। अपने तल्ख रवैये के बाद मुकाबिल के चेहरे पर दुख, दर्द और गुस्से के तासरात देखकर जाने क्यों उसे तस्कीन मिलती थी, जैसे वो अपने हमले में कामयाब हुई हो। मगर दुर्दाना, वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सिर्फ तुम्हारी होती तो कभी ना बोलती। शाज़िल की है इसलिए कह रही हूँ। अपने नाइट गाउन की डोरी बांधते हुए वो एक बार फिर मुस्कुराई और सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। दिलरुबा का मूड पूरी तरह से गारित हो चुका था। पाँव पटकती वो सदर दरवाज़ा उबूर कर गई थी। भाड़ में जाए अमल। आवाज़ बाज़गश्त बनकर गूंज रही थी। ऊपरी मंजिल की रेलिंग पर अपनी हथेलियां जमाए शाज़िल कबीर अपनी जगह सुन खड़ा रह गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। चूँकि एपिसोड काफ़ी लंबा है तो मुझे लगता है मैं इस एपिसोड को 2 पार्ट में दे दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। आधा एपिसोड तो मैंने रीड कर लिया है, बाकी का आधा कल। हम मिलेंगे कल आने वाले एपिसोड के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मुझे दुआ में याद रखें। ओके, टाटा, बाय।